I'm Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School, Yunsu. We are studying third chapter of Geography for class 10th, that is water resources. Before announcing today's topic, let me first of all recapitulate our previous topics. In previous topics, we have studied water as an important resource, some water facts and figures, water scarcity, causes of water scarcity on the basis of qualitative aspect and quantitative aspect. Till now, we have learned how important is water and how water gets scarce. In order to save this precious resource, we need to conserve it. And how we can conserve it? That is our today's topic. So, my dear students, today our topic is need for water conservation and management. Let us start. वाटर स्कैर्सिटी से ह्यूमन लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ता है, तो हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए, वाटर को मैनेज करना चाहिए. हमें अवेलेबल पानी की क्वालिटी का भी ख्याल रखना है, क्योंकि खराब पानी से बहुत सारी बीमारियों का खतरा हो सकता है. तो इससे बचने के लिए हमें पानी को कंजर्व करना चाहिए और मैनेज भी. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाटर कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है. Water conservation is essential for ensuring food security. Increase in growing population leads to increase in food production. तो फूड प्रोडक्शन के लिए सफिशिएंट पानी होना चाहिए. अगर पानी नहीं होगा तो फूड ग्रेन्स की कल्टीवेशन भी नहीं होगी और हमारी फूड डिमांड भी पूरी नहीं हो सकेगी फिर. इसीलिए हमें पानी को बचाना है, इसे कंजर्व करना है और इसकी मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है. Second, degradation of natural ecosystem. As we all are aware of the fact that water is an important component of an ecosystem. पानी है तो जिंदगी है. It is the basic unit of life without which existence of life is impossible. तो अगर हम इस important resource को degrade करेंगे, इससे entire ecosystem पे बहुत बुरा असर होगा. So we should conserve water and manage it properly. Water scarcity will also degrade other natural resources and will result in ecological crisis. मतलब फेमाइन हो सकता है, ड्रॉट हो सकते हैं, स्टारवेशन हो सकती है, ये सब हो सकता है और इससे लोगों की जिंदगी को बहुत खतरा हो सकता है. बहुत सारे लोग मर सकते हैं. All these things will have a negative effect on our lives. Our lives will become miserable. तो अगर हमें अपनी सेहत, फूड सिक्योरिटी, इकोलॉजिकल सिस्टम और अदर नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है, देन वी हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ वाटर रिसोर्सेज. वी हैव टू कंजर्व इट, वी हैव टू मैनेज इट प्रॉपरली. अब हमने ये तो देखा कि पानी को कंजर्व करना कितना ज़रूरी है. तो वाटर को कंजर्व और मैनेज कैसे करेंगे हम, ये हम अब पढ़ेंगे. We can conserve water through multi-purpose river projects and integrated water resource management. Let us first start with multi-purpose river projects for water conservation and management. Multi-purpose projects का मतलब है ऐसे projects जो एक साथ बहुत सारे फायदे देते हैं हमें. वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट का काम सिर्फ आज का नहीं है, बल्कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो भी ये काम करते थे. वो भी बहुत सारे तरीकों से वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट का काम करते थे, बस उनके तरीके अलग थे. इसके लिए हमारे पास हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स है, जिनसे हमें पता चलता है कि एंशिएंट पीरियड में भी वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट का काम होता था. For example, in 1st century BC, Sringavirapura had sophisticated water harvesting system, channeling flood water of Ganga river. रिवर गंगा में जब फ्लड आता था तो एक्सेसिव पानी को चैनल्स के जरिए आबादी तक पहुंचने से रोका जाता था. इसी तरह से ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, dams were constructed, lakes were built, and irrigation system was developed. One more evidence that we get from our archaeological sources is that sophisticated irrigation works like remains of canals,
lakes, etc. In Kalinga, that is in Odisha, Nagarjunakonda, that is in Andhra Pradesh, Binnar, Karnataka, Kolhapur, that is in Maharashtra. इसी तरह से मेडिवल पीरियड में भी हमें एविडेंसेस मिले हैं ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. फॉर एग्जांपल 11th सेंचुरी में भोपाल लेक बनाया गया. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ दैट टाइम. भोपाल में ये लेक है, ये एक बहुत बड़ा लेक है जो कि 11th सेंचुरी में बनाया गया. इसमें बहुत सारा पानी जमा रहता है, तो इससे भी हमें पता चलता है कि वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट का काम किया जाता था ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड. इसी तरह से 14th सेंचुरी में भी एक वाटर टैंक बनाया गया इन हौजी खास फॉर सप्लाइंग वाटर टू श्री फोर्ट एरिया. All these examples were the evidence of water conservation and management during ancient and medieval period. इन examples से हमें समझ आया that from ancient time people were taking great care for water conservation and management. So it's not a new concept, only the way is different now due to the technological advancement in modern period. अब हम पढ़ेंगे water conservation in modern period. आज के जो रिवर प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनका पर्पस सिर्फ इरिगेशन प्रोवाइड करना नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल देम मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स लाइक इरिगेशन, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल. दिस इज द रीजन वी कॉल देम मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स. लाइक डैम्स. Dam is a barrier constructed to hold back water and raise its level, forming a reservoir used to generate electricity and as a water supply. जहाँ बहता हुआ पानी होता है वहाँ पे एक बैरियर कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसी बैरियर को डैम कहा जाता है. ये पानी को रोकता है किसी और डायरेक्शन में, जिससे पानी का एक रिजर्वर भी बन जाता है. ये तो था डैम. Now we will see the types of dams on the basis of their structure. That means कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है. नंबर फर्स्ट टिम्बर डैम्स. नंबर सेकंड embankment dams. Number third masonry dams. Likewise, according to the height, dams are also classified as large dams, major dams, low dams, medium height dams, and high dams. Dam is a multi-purpose river project because dam provides irrigation facility, dam generates electricity, dam controls floods, it provides occupation of fish breeding. Fishermen अपनी economic activity को generate कर सकते हैं dams में. इन सारे पर्पसेस को फुलफिल करता है एक मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट, तो इसीलिए इसे मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट कहते हैं डैम को. सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू हैव अंडरस्टूड व्हाई डैम्स आर मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स. अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू, डैम्स आर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. मतलब डैम्स टेम्पल्स है इंडिया के लिए, मॉडर्न इंडिया के लिए, बिकॉज dams led to the development of agriculture and village economy, rapid industrialization and growth of urban economy. Dams से पानी जमा रहता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है और इलेक्ट्रिसिटी से इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा ऑपरेट कर सकते हैं जिससे अर्बन इकोनॉमी की भी ग्रोथ होती है. So dear students, this was all about today's topic, that was need for water conservation and management, जिसमें हमने पढ़ा मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स. होप आपको समझ आया होगा. थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज.